Hello everyone, myself Avijit Sinha, and today I am going to start chapter number 22, Unpacking Gender. Dear student, in this chapter we read about gender discrimination, gender inequality, and how orthodox people or stereotype people exist in our society or impose their ideas or to live with their old tradition, custom, cultures, rituals, which leads gender inequality, discrimination between boys and girls or men and women. So let us start. The word gender refers to the different values, attitudes, and behaviors are attached to the roles of males and females by different social and cultural groups. The word gender refers to the different values, attitudes, and behavior. It means different values and different attitudes with different behavior that all are attached to the roles of male and females by different social and cultural groups. It means males and females have different values, different attitudes, and their different behaviors in the social and cultural groups. All these are in different manner. For example, women cook and clean, men fix cars and fly aeroplanes. It is the thinking of orthodox people, not it is necessary or it is essential that women cook food or clean the house or men fix car and fly aeroplanes. We see lots of hotel where men cook food, not women. Roles of boys and girls, even as babies, boys and girls are treated differently. Babies, boys and girls are treated differently. How they treated? In some communities, boys are always dressed in blue and not in pink, as it is considered to be a feminine color. It means pink is a color for girls, not for boys. Stereotypical gender roles. Stereotypical means the orthodox people who were called orthodoxian, those who follow their old custom, tradition and rituals. वैसे लोग जो ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन को लेकर चलते चले आते हैं. किस तरह का कि हमारा सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट है. इट मीन्स सोसाइटी में या घर में मेल का ही पावर होगा, मेल का ही ऑर्डर चलेगा. बट इट इज़ वेरी रॉन्ग द वे और टू क्रिएट द सीन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. Stereotypical gender roles like males are tough and females are the weaker sex. Stereotypical genders का थिंकिंग क्या होता है? दे थिंक दैट मेल्स आर टफ, मेल जो होते हैं वो टफ होते हैं, एंड फीमेल्स आर वीकर सेक्स, फीमेल कमज़ोर होती हैं. ओरिजिनेट फ्रॉम रोल्स दैट आर टफ ड्यूरिंग चाइल्डहुड. और ऐसा मान लिया जाता है कि चाइल्डहुड से ही मेन बॉयज़ को ये कहा जाता है कि वो टफ हैं एंड गर्ल्स को सॉफ्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है. बाय द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन टेंड टू बी अवेयर ऑफ देयर जेंडर. They are encouraged to prefer the games, clothing, ways of speech, and other aspects of cultures usually associated with boys or girls. It means all these things, the games, clothing, ways of speech, and other aspects of cultures, all these are relate with boys and girls differently. Males are told boys don't cry and girls and are given guns and cars as toys, and girls are given dolls and playhouse so that they can play the traditional female home making role. इट मीन्स बच्चे से ही हमको ये बताया जाता है कि उनका ट्रेडिशनल रोल जो है वो क्या होने वाला है. इट मीन्स बड़े होकर लड़कियों को ये बताया जाता है कि बड़ा होकर उनको हाउस वाइफ बनना है, और मेल को बॉयज़ को ये बताया जाता है कि बड़े होकर उनको जॉब करना है. बट द सीन और द टाइम और द एरा बिकेम चेंज. It is not in the same manner that the people think. The gist of the matter is that girls are schooled to be soft and obedient, and boys are told to be
टफ। स्कोल्ड करना मतलब उनको शुरू से ये ट्रीट किया जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो सॉफ्ट हैं एंड ओबीडियंट, उनको आज्ञाकारी बनाया जाता है। एंड बॉयज़ आर टोल्ड टू बी टफ एंड डोमिनेटिंग, बॉयज़ को टफ बनाया जाता है एंड डोमिनेंट नेचुरल बनाया जाता है ताकि आगे चलकर वो शासन कर सकें। बट दिस चेंज their ideas, their sensitivity and their human nature also. In this way, the society wrongly ingrains the specific roles that girls and boys are supposed to play when they grow up into women and men. Next is society and stereotyping, where the stereotypical people live in the society. It means the society designed by the stereotypical people. The notion of stereotyping is generally negative. Stereotyping is generally negative, not it is sense that always negative. It is generally negative. Why it is not called always negative? Because something or somewhere the old tradition is best than the present one. Because some as the cultures, the situations or the wording styles or the बिहेवियर ऑल आर टोटली चेंज। पहले बड़े बुजुर्ग लोग की इज्जत की जाती थी, बच्चे लोग जो थे वो काफ़ी संस्कारी होते थे। आजकल के बच्चों में क्या होता है, शुरू से रूडनेस होता है, वो शुरू से किसी को भी कुछ भी जवाब दे देते हैं, बच्चे पेरेंट्स से भी बहस कर लेते हैं। बट पहले के टाइम में बच्चे पेरेंट्स की काफ़ी रिगार्ड किया करते थे, पेरेंट्स कुछ भी बोल देते थे वो उनकी बात मान लिया करते थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटिपिकल नेचर और स्टीरियोटिपिकल सेंस। वो शुरू से बच्चे को, लड़कों को ये सिखाते हैं कि वो डोमिनेंट नेचर के हैं, उनको टफ ट्रीट किया जाता है, तो धीरे धीरे उनका नेचर चेंज हो जाता है। ऑब्वियस, अगर लड़कों को भी ये सिखाया जाए कि व्हाट इज़ द सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाट इज़ द बिहेवियर, व्हाट इज़ द टॉकिंग स्टाइल, ये सब कुछ अगर उनको बचपन से ही सिखाया जाए तो देन दे ऑल्सो एज अ सॉफ्ट इन नेचर। दूसरा चीज़ क्या है, जो ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशनल कल्चर है, ड्रेस सेंस काफ़ी चेंज होता जा रहा है, जो कि आज के सोसाइटी से ये रिलेट नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। पहले हमारा ये कल्चर नहीं था। वेस्टर्न कल्चर हमारे आज के कल्चर को टोटली चेंज करता चला जा रहा है। बट इट इज़ नॉट टू सेंस दैट वेस्टर्न कल्चर इज़ वेरी बैड। वेस्टर्न कल्चर इज़ गुड। नाउ इट इज़ टू बी come in our habit or in nature, but not as usual or as in the same way. Next one is, now come on to next. The notion of typing is generally negative. It creates discrimination that result in equality. It means the stereotyping nature is the main form which plays an important role to form or to create discrimination. It hampers the individual thoughts. इंडिविजुअल थाउट को हैम्पर करता है या फिर चेंज करता है। इट इज़ प्रेजुडिस, इरेशनल एंड बेस्ड ऑन फियर ऑफ व्हाट इज़ डिफरेंट। जो भी डिफरेंट हो रहा है, जो भी डिस्टिंग्विश हो रहा है या फिर जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइपिंग नेचर। नेक्स्ट वन इज, it is prejudice irrational. Prejudice irrational means illogical, without any logic sense. Stereotyping of roles has deep roots in the human mind. Stereotyping of roles has deep roots in the human mind. It may have originated in the early primitive tribes. It means the human mind have originated in the early primitive tribe. Originate from early primitive type. Early primitive type means the orthodox in nature. As they struggled for the control of territory, the physical strength of males was considered very important. It means शुरू से जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी या फिर मेल डोमिनेंट सोसाइटी चलता आ रहा है, उस चीज़ को लोग आगे भी कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द डोमिनेशन कंटिन्यूज इवन इन मॉडर्न टाइम्स। और यही रीज़न है कि ये मॉडर्न टाइम में भी इस तरह का डोमिनेशन कंटिन्यू है। मॉडर्न टाइम में डोमिनेशन कहने मतलब मेल जो है वो डोमिनेट करते हैं किनको, वुमेन को, या फिर वो हर्ट करते हैं वुमेन को, या फिर वो उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी में। ऑल दीज आर रन फ्रॉम द अर्ली टाइम। नेक्स्ट इज द एफर्ट
to create a free, democratic, and rational society where everyone enjoys equality continues to be an important political and social issues. The effort to create a free, democratic, and rational society कहता है सोसाइटी को रेशनल बनाना चाहते हैं लोग, लॉजिकल बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, उनको फ्री करना चाहते हैं किस चीज़ से, डिस्क्रिमिनेशन से, वेयर एवरीवन एंजॉय इक्वलिटी. और ये कब होगा? व्हेन एवरीवन एंजॉय इक्वलिटी कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज़. जब इसको हम पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज़ में कंटिन्यू करेंगे तब. सोशल इशूज़ रिलेटेड टू सोसाइटी एंड पॉलिटिकल इशू रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. Stereotyping of gender roles may vary from culture to culture, but the fact remains that most of the behavioral differences between males and females are determined by society. It means the discrimination or the differences between the male and female or the boys and girls are determined by society. Why? Because in the society the stereotyping people exist. Next is gender inequalities. What is gender inequality? It means gender discrimination or differences. The set activities assigned to girls and boys do not end with the selection of toys for each. कहता है ये सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होता है कि उनको टॉयज़ का सिलेक्शन करके दे दिया जाता है, जैसे बॉयज़ को गन दे दिया गया और गर्ल्स को डॉल दे दिया गया. दे इवन इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेज. स्कूल एंड कॉलेज में सब्जेक्ट पे भी ये डिपेंड करता है. बॉयज़ को टफ सब्जेक्ट के लिए मोटिवेट किया जाता है, इंकरेज किया जाता है, एंड गर्ल्स को जो ईजी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए. Later on the value to attach to the work of males and female also differs. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉयज़ को आगे चलकर जॉब करना होता है, वर्क करना होता है, इसलिए उनको ऐसा दिया जाता है कि वो टफ सब्जेक्ट लेंगे, आगे चलकर उनका स्कोप होगा. गर्ल्स को इजी सब्जेक्ट देंगे जिसका कोई स्कोप ऐसा होता नहीं है और वो उनको लेकर आगे बढ़ नहीं सकती हैं. क्यों? क्योंकि उनको आगे पढ़ना नहीं होता है. ऐसा ये सोच होता है स्टीरियोटाइपिंग पीपल का या फिर ऑर्थोडॉक्सियन लोगों का. Later on the value attached to the work of males and females also differ. अब वो वर्क पे भी डिपेंड करने लगता है. सबसे पहले टॉयस पे, सेकेंड वन सब्जेक्ट एंड थर्ड वन वर्क. वर्क क्या, जो टफ वर्क होता है वो बॉयज़ के लिए और मेल्स के लिए होगा, एंड जो इजी वर्क होगा वो फीमेल के लिए. मोस्ट वुमेन वर्क मच हार्डर देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स. मोस्ट वर्क मच हार्डर देन देयर मेल काउंटरपार्ट. कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो मेल काउंटरपार्ट से काफ़ी टफ होते हैं. अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. वुमेन जो है वो घर पे खाना बनाने का ही जो काम करती हैं, वो सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना बनाने के बाद फिर अगले दिन का उनको चिंता होता है कि सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और फिर से रात का खाना. बच्चों को ड्रेसअप करना, उनका ड्रेस आयरन करना, उनका शूज़ पॉलिश करना, बच्चे को केयर ऑफ करना, इतना सारा काम करने के बाद भी उनका वो रूटीन जो है वो डेली चलता रहता है. मोस्टली एक चीज़ और है कि उनके पास कोई वीकेंड नहीं होता है, कोई संडे नहीं, किसी तरह का कोई छुट्टी नहीं होता है. फिर भी वो कभी किसी तरह से डिसअपॉइंट नहीं होती हैं. बट लोग उनके प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं. मेल को अगर खाना बनाने दे दिया जाए तो वो सुबह का नाश्ता और दिन का खाना बना सकते हैं, बस रात का खाना बनाने का समय आने तक वो काफ़ी थक चुके होंगे. तो एज इट इज़ अगर ये कहा जाता है कि मेल जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं और वुमेन जो होती है वो सॉफ्ट होती हैं, बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. सो कम ऑन टू द पॉइंट. I'm not saying that male is soft or woman is hard. I'm saying only that both are played a harder role in our society if we provide or if we give them opportunities as same as to others. Next is, but the invisibilization of women's labor fails to get them their due share. इनविजिबलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि वुमेन जो काम करती है वो इनविजिबलाइज हो जाता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है. वो जितना भी मेहनत कर लें, जितना भी एफर्ट लगा लें, उनके मेहनत की कोई कदर नहीं होती है. द हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर आर नॉट कंसिडर्ड वर्क. हाउस वर्क और चाइल्ड केयर या फिर हाउस होल्ड कोर्स एंड चाइल्ड केयर एंड केयरिंग ऑफ चिल्ड्रेन आर नॉट कंसिडर्ड वर्क. इनको काम में गिनती नहीं किया जाता है. द कंडीशन ऑफ रूरल वुमेन इज क्वाइट सैड. Condition rural women is also very quiet, as rural men are migrating to cities in large number in search of employment. The women have taken over the responsibility of looking after the farms. कहता है अगर रूरल मेन जो हैं वो अगर काम के लिए बाहर चले जाए, शहर में चले जाएं जॉब
खोजने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो वुमेन को घर पे रहना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? वो घर का काम करने के लिए और अपने फार्म को देखने के लिए, खेती करने के लिए, खेत देखने के लिए। बट अगर हम पुराने समय की बात करें, ब्रिटिश के टाइम की, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, 1914 टू 1918 का टाइम था, उस वक्त भी जब ब्रिटिश लोगों को इंगेज कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन पीपल को, क्योंकि उस समय कॉलोनाइजेशन था, ब्रिटिश का रूल था, तो जब वो गांव से उठाकर या फिर शहर में ही कुछ लोग जैसे मेंस को ले जा रहे थे एज अ सोल्जर के फॉर्म में, ठीक है, दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई करने के लिए, तो जो वुमेन होती थी वो मेल का काम करना फिर शुरू कर देती थी। उनको फार्मिंग एक्टिविटी भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर का काम भी करना है, तो ये सारा कुछ उनके लिए काफ़ी टफ होता था। बट ये सिचुएशन शुरू से चला आ रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द अर्लियर टाइम। कम ऑन टू द नेक्स्ट। They continue to do their traditional work in household, that is family care, fetching water, fodder, firewood, basket making, etc. फैमिली केयर, फैमिली को टेक केयर ऑफ करना, फेचिंग वाटर, कुआं से पानी खींचना या फिर पानी भर कर लाना कहीं से, नदी से, तालाब से या फिर कुआं से, फॉडर, जानवर के लिए चारा लाना, फायरवुड, घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी का इंतजाम करना, एंड बास्केट मेकिंग का काम करना, जिसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री में शामिल कर सकते हैं इस तरह के वर्क को। दे ऑल्सो वर्क ऑन द फार्म्स ड्यूरिंग सोविंग एंड हार्वेस्टिंग अलॉन्ग विथ लुकिंग आफ्टर द काउस, बफेलोज एंड हेंस। मतलब इतना काम करने के बाद, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करने के बाद उनका काम क्या होता था? सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब खेती करना भी उन्हीं को पड़ता था। सारा काम ऐसे कह सकते हैं कि होल बर्डन और होल द फैमिली बर्डन कम ओवर और कम ऑन टू द वुमेन आफ्टर मेन गोइंग टू द cities for searching job. The list of their work is endless. अगर वुमेन के वर्क की बात करें तो उनका वर्क जो होता है वो एंडलेस होता है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। The domestic maids in the big cities also work very hard, live under अनहाइजेनिक कंडीशन एंड लीड अ लाइफ विदाउट डिग्निटी। एक तो उनके पास डिग्निटी नहीं होता है, रिस्पेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके वर्क को किसी तरह से कंसिडर नहीं किया जाता कि दैट दे डू द वर्क। सेकेंड थिंग क्या है? द डोमेस्टिक मेड इन बिग सिटीज़ ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड, लिव अंडर अनहाइजेनिक कंडीशन। कभी कभी वो ऐसे कंडीशन में काम करती है जो अनहाइजेनिक होता है, जो कि उनके लिए उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, फिर भी उस जगह पे वो काम करती हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो एक लाइन यूज़ किया है कि द लिस्ट ऑफ देयर वर्क इज एंडलेस। उनका वर्क जो होता है वो एंडलेस होता है, कभी खत्म होने वाला नहीं होता है। दिन भर का काम करने के बाद जब वो रात को सोने जाती है तो उनको कल का चिंता होता है कि कल हमारे पास क्या क्या वर्क होगा और किसके लिए क्या क्या रेडी करना है। हस्बैंड अगर ड्यूटी जा रहे हैं तो उनके लिए खाना तैयार करना है, लंच पैक करना है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका ड्रेस रेडी करना है। लेकिन उनके रोल को, उनके वर्क को कोई कंसिडर नहीं करता है, उनको कोई समझने वाला नहीं है। बट नाउ द टाइम इज़ चेंज, समझना होगा, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करती हैं हमारे लिए। फिर वो हमारी माँ हो या फिर हमारे घर में हमारे लिए हमारे वर्क में हेल्प करने वाली या फिर हमारे काम को शेयर करने वाली हमारे घर में दीदी हो, कोई भी फीमेल वर्क पर्सन हो, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। दे डिज़र्व। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट। They dream of a better life in cities as compared to their rural counterparts, but continue to survive under discriminating condition. इतना काम करने के बाद भी, इतना सारा बर्डन होने के बाद, इतना सारा बर्डन को उठाने के बाद या फिर सारा वर्क प्रेशर ले लेने के बाद भी they survive or they suffer with discriminating condition or discriminating nature of the society. Look at the picture. A woman laborer is working on a road construction site and carrying her baby at the same time. एक तरफ क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जो रूरल वुमेन है वो काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? तो एक तरह का कंस्ट्रक्शन साइट है या फैक्ट्री साइट है जहाँ पे वो ईंटा एक तरफ से ढो रही है, दूसरे हाथ से बच्चे को ली हुई है। सेकंड फिगर में अगर हम देख लें इस फिगर में, तो इस फिगर में क्या दिखा रहा है? इस फिगर में दिखा रहा है कि जो वुमेन है वो टाउन और सिटीज़ में काम करने वाली औरतें हैं, लेकिन जब ये घर वापस आ रही हैं शाम को तो इनके हाथ में बैग है, लगेज है। बैग क्या है? तो जो घर जाकर जो ये खाना पकाने वाली हैं उसके लिए हो सकता है ये सब्ज़ी लेकर आ रही हो या फिर राशन लेकर आ रही हो या फिर घर से ऑफिस से घर लौटते वक्त जो हाउस होल्ड नीड्स है वो लेकर आ रही हूँ। द कंडीशन ऑफ अर्बन एजुकेटेड वुमेन इज़ नॉट वेरी डिफरेंट
Condition of urban woman. Urban educated woman is not very different. She begins her day at the crack of dawn. She begins her day, वो अपना दिन का शुरुआत कैसे करती हैं? At the crack of dawn. Crack of dawn कहने का मतलब क्या होता है? Dawn मतलब होता है जो गुदली बोला होता है, मतलब सुबह नहीं होता है लेकिन फिर भी उनका काम वहाँ से शुरू हो चुका होता है. He cook for the entire family. क्यों? सूर्योदय होने से पहले उनको उठना इसलिए पड़ता है ताकि वो घर का सारा काम निपटाने के बाद फिर वो ऑफिस भी जा सकें. That she cook for the entire family, send her children to school, pack her husband's lunch and goes to the bus stand to catch an overcrowded vehicle. At work she has to perform her duties, equivalent to her male counterparts. जैसे मेल काम करते हैं वैसे ही ये उन्हीं के एज अकॉर्डिंग कंपेरिजन में सेम वर्क ये भी करती हैं. Once back home in the evening, she has to complete the household chores and then manage to catch a few hours sleep before following the same routine the next day. The work she does at home is unaccountable. It is not considered productive. कहता है इस काम को अनअकाउंटेबल हम कह सकते हैं, मतलब अकाउंट नहीं कर सकते हैं कि वो कितना काम करती हैं और काम जो करती हैं उस काम का वैल्यू क्या है. कभी कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता. क्यों? दिन भर सुबह से लेकर रात तक काम करने के बाद जब वो रात भर का नींद पूरा करती हैं, सुबह उठती हैं, फिर से उनका वही रूटीन शुरू हो जाता है. बट हम लोग का रूटीन कब शुरू होता है? हम लोग का रूटीन शुरू होता है जब हम स्कूल पहुंचते हैं, हमारे स्कूल का ड्यूटी होता है, या फिर मेल मेंबर जो होते हैं जब वो ऑफिस जाते हैं 10 से 4 बस 4 बजे आने के बाद उनका सारा ड्यूटी ओवर हो चुका होता है. उसके बाद वो घर ऐसे आते हैं, लगता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम करके घर को वापस लौटा है. देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल ऑफ अस दैट टू प्लीज रिगार्ड द वुमेन्स. ओके, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.